Hello, hello students. Welcome to the lecture 9 of trigonometry series by Integral Minds. In this lecture, we are going to discuss a very important topic, important topic in terms of board exams, and also a lot of questions are asked in engineering entrance exams like JEE. So basically we are going to learn about inverse trigonometric functions. So let's just dive into the concept first. So say what is suppose you are given an mathematical term where you get something like this. So this is nothing but inverse function, and it's like we call it sine inverse x. So suppose in this case, what is the value of y? What is y in this range if x is equal to 1 by root 2? So sine inverse x or 1 by root 2 will be nothing but pi by 4 और 45 डिग्री. तो ये देखिए, ये ऐसा चीज़ है जो आपको आप पकड़ लीजिए, ऐसा फंक्शन है जिसमें आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे, तो वो जो वैसे साइन ऑफ एक्स का वैल्यू जब वाई आता है तो ये वाई का अगर हम लोग साइन इन्वर्स वाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका एक्स. तो अगर हम लोग एक और पकड़ लेते कि y का रेंज सपोज दिया नहीं गया है, सपोज वी आर नॉट गिवन द रेंज ऑफ y एंड इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा? तो हमें पता है कि वो पाई बाय 2 होगा. और क्या क्या वैल्यू होगा कंसिडरिंग बिटवीन द वैल्यूज of 0 to pi by 2. So if we take it like this, so pi by 2 it's 1, it's pi, 3 pi by 2, 2 pi, 2 pi plus, again if it comes back here then it will be pi by 2 plus 2 pi, again pi by 2 plus 4 pi, then pi by 2 plus 4 pi by 6 pi. So if we observe that this, we see that sine inverse 1 will be pi by 2 plus 2k pi for all where k is greater than equal to 0. So for k equal to 0 it will be pi by 2, for k equal to 1 it will be pi by 2 plus 2 pi, that is 5 pi by 2. Similarly, if we consider the value of say cos inverse 1, so we know that cos is for the range between 0 to pi by 2 where 0 and pi by 2 is included. अगर 0 और pi by 2 को हम लोग include कर लेते हैं तो it will be 0, right? So ये 0 पे यहाँ पे it will be 0, it will be 1, cos का value 1 होगा. Again it will come back and then it will be cos, it will be like pi to pi, so it will be at cos 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. So if we consider the entire series, how much do we get? We get it as 2k pi where k is greater than equal to 0. So this is how we understand the inverse function. And let us do one more question, one more let's say it's tan inverse 1. तो हम tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है बिटवीन 0 to pi by 2?
वो π/4 में होता है और कहाँ कहाँ होता है. If we just draw it separately, so 10 π/4, it will be π/4, it will be 1. Again, all sign 10 in third quadrant, we know 10 is positive, so again here it will be 1. So π/4 plus pi, here up to here it's pi, right? Then π/4, pi plus π/4. Again if we go another pi plus π/4, pi plus π/4. So we get that, we see that pi plus π/4. Where is pi plus π/4 by the way? So we know that this is pi plus π/4, and then again if we move another pi plus π/4, we reach actually π/2, right? So basically understand this. अगर हम लोग यहाँ पे है, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ. हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये क्या है, पाई प्लस π/4. तो अगर हम एक और पाई मूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली π/4 ही हो जाएगा, π/2 पाई प्लस π/4. मतलब ये क्या है, यहाँ पे वापस आ गया. सो वी सी, आप चीज़ को समझो कि यहाँ से पाई प्लस π/4 जो है, तो ये अगर 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस π/4 मतलब 2 1 2 प्लस π/4 ये हो जाता है, ठीक है ना. लेकिन अगर हम लोग यहाँ से, जो ये ऑलरेडी पाई प्लस π/4 है, यहाँ से हम लोग पाई मूव करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है. सो इट इज़, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k पाई for any value later than 0. But does this suffice? इसमें क्या all cases आ जाता है? आप लोग सोचिए थोड़ा, टेक 30 seconds एंड थिंक अबाउट इट. पॉज करके, वीडियो को पॉज करके. हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था विच इज़ निगेटिव एंगल. तो अगर हम लोग निगेटिव एंगल को इस केस में लेके पकड़ के चलते हैं, पकड़ लेते हैं कि k का वैल्यू एक निगेटिव हो गया, से व्हाट इज साइन π/2 माइनस 2 पाई. अब अगर आप लोग बोलेंगे कि ये तो निगेटिव हो गया, हम लोगों ने तो निगेटिव एंगल ऑलरेडी सीखा था, वी हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट इट. सो लेट अस जस्ट सी वेयर डज π/2 माइनस 2 पाई एग्जिस्ट. लेट्स जस्ट थिंक. तो अगर हम लोग, ये हम लोग का क्वाड्रेंट हो गया, तो टू माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई क्या होगा, माइनस 2 पाई विल बी अ क्लॉकवाइज ये घूमेगा, तो 1 माइनस पाई माइनस 2 पाई हो गया. अभी बोला कि प्लस π/2, तो प्लस π/2 इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये साइन π/2 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो 1. तो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है. वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर दोज केसेस जहाँ पे निगेटिव एंगल भी हो सकता है. तो साइन इनवर्स 1 का जो फाइनल आपका वो होगा, ये क्या होगा, π/2 प्लस 2k पाई, जहाँ पे k इज एनी इंटीजर. सिमिलरली कॉस इनवर्स 1 क्या है, 2k पाई. इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर से डिवीजन हो जाएगा. तो आप पकड़ लीजिए कि 2k जो है वो निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस 1 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई. माइनस 2 पाई क्या है, हम लोगों ने देखो 2-3 तरीके से वी कैन वेरीफाई इट. हम लोगों ने एक चीज़ किया था कि माइनस 2 पाई यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. माइनस 2 पाई हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट
-2 पाई, कॉस ऑफ -2 पाई हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ऑल इज पॉजिटिव, तो ये cos 2 पाई हो जाएगा. तो cos 2 पाई वी ऑलरेडी नो इट्स व्हाट, वी नो दैट इट इज़ 1. तो ये एक चीज़ तो हो ही गया है. तो इसको अगर हम लोग ये पकड़ लेते हैं कि k एनी इंटीजर, तब ये k इज़ एनी इंटीजर, देन ऑल्सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट. सो ये इनकम्प्लीट है. सिमिलरली tan इनवर्स 1 जो है उसका भी ऐसा ही होगा. हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन में आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन यू इन दैट डायग्राम ओनली, बट बीच में आई जस्ट थॉट कि लेट अस जस्ट एक्सप्लेन यू दिस पार्ट, देन हम लोग डाइव करेंगे निगेटिव एंगल में. तो अगर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ये π/4 है, तो यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो ये पाई प्लस π/4 हो जाएगा, पाई प्लस π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये पाई प्लस π/4, ये यहीं पे भी, यहाँ पे भी ये वही होगा. अगर हम लोग एक और पाई मूव करेंगे तो ये इधर आ जाएगा. तो उल्टा अगर हम लोग घूमेंगे कि पाई, ये पाई हो गया, यहाँ से पाई हो गया और यहाँ से पाई हो गया, तो 2 पाई माइनस π/4 अगर हम लोग पकड़ेंगे तब भी ये हो जाएगा. तो यहाँ पे भी k पाई जो होगा उसको हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, k पाई प्लस ये क्या था, k पाई प्लस π/4 होगा, सॉरी k पाई प्लस π/4. हम लोग k कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, इज एनी इंटीजर. सो सिमिलरली वी कैन गेट इट फॉर ऑल द फंक्शंस, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो ये चीज़ बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्चुअली मैंने कोशिश की है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको समझा सकूँ. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड आई विल अगेन री रिकॉर्ड इट इन योर लैंग्वेज, इन योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज़ पुट कमेंट्स. ओके, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड विल फिनिश दिस वीडियो. ओके, तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है कि summation of n square is equal to lambda summation of n. तो from induction we know कि 1 square plus 2 square plus 3 square डॉट 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 n square, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, n plus 1 2n plus 1/6. ये सब भी यू नीड नॉट लर्न दिस, ये सब सीखने का कोई चीज़ नहीं है. हम लोग बाद में इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग जब व्हेन वी विल लर्न इंडक्शन. बहुत बढ़िया प्रूफ है इसका, बहुत इजी, बहुत ही इजी है ये सब, बहुत बेसिक सा चीज़ है. सो n plus 2 होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग ये पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n plus 1 2n plus 1/6, और ये लेमडा n plus 1/2. तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं. तो ये हो जाएगा आपका क्या, कितना, ये आपका हो जाएगा 2n plus 1 इक्वल टू 3 लेमडा. यस बिल्कुल. तो अगर हम इसको ये वाला चीज़ में पुट कर दे जो हम लोग का साइन इन्वर्स के अंदर दिया गया है, तो साइन इन्वर्स के अंदर क्या दिया गया है, 9 लेमडा के जगह, 9 लेमडा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं. अब देखो, तो ये जो 9 लेमडा स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लेमडा होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर, है कि नहीं. और नीचे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाता है 3 लेमडा प्लस 2n. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 लेमडा प्लस 2n 3 लेमडा माइनस 2n 2, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 लेमडा माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2. एंड फ्रॉम दिस ये क्या है, ये 1 इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2n. तो वी कैन पुट 1 हियर. तो ये बन जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स 3 लेमडा माइनस 2 मतलब 1/2. तो अब इस साइन हाफ विद इन 0 π/2 के बीच में ये कब हाफ होता है, वी नो इट्स π/2.
पाई बाई 6 मतलब साइन 30। इसके अलावा और क्या हो। एंड हम लोगों को क्या पता है कि साइन का कोई भी वैल्यू हो ये 2k पाई के साथ रिपीट होता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस 2k पाई। तो आप पकड़ लो, लेट अस जस्ट वेरीफाई इट। तो अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस 2 पाई, मतलब आप पकड़ लो ये क्या हो जाएगा 1 पाई 2 पाई, है कि नहीं। 2k पाई, k इज़ एनी इंटीजर, तो 2 पाई हो गया प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई 60 डिग्री। So thus we have understood this very important concept and चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। पर एक चीज़ सोचो, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, aren't we missing out this part also? So we know कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो अगर ये 2 पाई हो गया, सपोज अब पकड़ लो साइन पाई माइनस पाई बाई 6, सो वी नो दैट इट विल बी साइन पाई माइनस पाई इधर हो गया तो पाई बाई 6 इधर हो जाएगा, सो पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 इज वी नो हाफ, तो ये क्या हो जाएगा ये 5 पाई बाई 6। तो वी हैव टू सेट्स ऑफ वैल्यू हेयर, इधर इट विल बी पाई बाई 6 प्लस 2k पाई और 5 पाई बाई 6 प्लस 2k पाई, where k is any integer. So whenever we this kind of question, आपको जो ऑल ये जो है ये ऑल क्वाड्रेंट के लिए हम लोग का एक केस आ जाता है, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट क्वाड्रेंट जहाँ पे उसका वैल्यू आता है। तो ये जो होगा, अगर हम लोग इस पे वापस आएंगे, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या होगा, ये भी सोचिए। इसमें अगर हम लोग पकड़ लें कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप देख लो कि पाई माइनस पाई बाई 2 पकड़ेंगे तो वो पाई बाई 2 ही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दिया गया है, जैसे यहाँ पे हाफ दिया गया था, तो वो वैल्यू एक्चुअली कहाँ कहाँ हो सकती है। यू हैव टू कंसिडर ऑल द क्वाड्रेंट्स बिफोर यू अराइव एट एन आंसर। तो आपको ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे देंगे जहाँ पे ये ऑप्शन भी रहेगा, ये ऑप्शन भी रहेगा, एंड यू विल जस्ट टिक दिस एंड कम बैक, एंड अल्टीमेटली ये गलत हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट होगा, तो ये भी आपको पकड़ना है, ठीक है ना। सो लेट्स जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल वाइंड अप। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देखो क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि पहला जो है ये बोला गया कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, 5/13, 33/65। तो हम लोग सब देखेंगे कि जो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ एक्स क्या होगा, ये p/h होगा। तो अगर उसी ट्राइंगल को अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो उसका टाइन 10x क्या होगा, 10x होगा p/b। तो b क्या है आपका, b इज़ h² माइनस p²। तो हम लोग इसको 10 के टर्म्स पे लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक चीज़ है, आप समझिए बात को कि 10 और कॉट जो है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आपको याद होगा कि जो 10 ऑफ जो आपका 10 ऑफ 0 होता है वो क्या होता है, साइन 0 बाई समथिंग वो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन कॉट ऑफ मतलब 0 बाई कुछ समथिंग हो जाता है कि नहीं, 0/1 यहाँ पे। तो कॉट ऑफ 0 क्या होता है, कॉट ऑफ 0 होता है आपका 1/0, अनडिफाइंड नहीं होता है, ये 0 होता है, सॉरी 10 ऑफ 0, और ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग पकड़ लेंगे कि 10 ऑफ 30, 10 ऑफ 30 क्या होता है, 10 ऑफ 30 हमेशा आपका
10/30 होता है आपका जो sin/30 मतलब हाफ बाई 1/√, और इधर होता है √3/2, तो ये हो जाता है आपका 1/√3। और आपका cot/30 कितना होता है? cot/30 हो जाता है आपका √3। तो ये बात को आप समझिए कि 10 और आप समझिए कि जो 10 अगर 1/√3 है तो वो वैल्यू कितना होता है आपका π/6। और अगर 10 कॉट अगर 1/√3 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है π/3। तो π/3 और π/6 अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो कितना होता है? π/2। तो ये बात को समझिए कि जो अगर tan इन्वर्स x है और cot इन्वर्स x है तो इसका समेशन हमेशा π/2 होगा, क्योंकि tan और cot जो है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम लोग वापस क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? cos sin 3/5 का क्या होगा? ये हो जाएगा आपका tan 3/4। ये हो जाएगा tan इन्वर्स 5/12। और ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स 33/56। ठीक है। तो अभी हमें एक वी नो अ वेरी इम्पोर्टेंट जो एक आइडेंटिटी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये आप सीख लीजिए। 4 आइडेंटिटीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स जस्ट चेंज द कलर। कि जो tan इन्वर्स x होता है एंड tan इन्वर्स y होता है उसका हमेशा क्या होता है? tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ये बहुत ही सिंपल है याद रखना, क्योंकि हमें पता है कि tan x प्लस tan y कितना होता है। Do we know the value of tan x plus tan y? We do know. In fact, tan x plus tan y नहीं, tan x plus y इसका होता है tan x plus tan y 1 minus tan x tan y। बहुत ही इजी टू रिमेंबर है। देखिए आप ये सब प्रूव भी कर सकते हैं, बट हम लोग करेंगे, अगर आप लोग चाहे तो हम लोग करेंगे जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो बोर्ड यहाँ पे भी प्लेलिस्ट में भी मैं कराऊँगा। तो सिमिलरली tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y कितना हो जाएगा? tan इन्वर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो कॉट का भी ऐसे निकलता है। कॉट का आपका निकलता है कॉट इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स y। तो ये हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई, और कॉट इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स वाई हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, सॉरी उल्टा होता है। तो वापस इस पे चलते हैं, इसको करते हैं कॉस। ये हो जाएगा अपना tan इन्वर्स 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 प्लस tan इन्वर्स 33/56, है कि नहीं?
तो इसको सॉल्व कर तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम लोग इसको ठीक से करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 30, आई थिंक इट विल बी 56/33। और यहाँ पे है आपका tan इनवर्स 33/56 एंड tan थीटा इज़ 1/cot थीटा, वी नो दैट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos tan इनवर्स 56/33 cot इनवर्स 56/33 एंड वी नो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बन जाएगा cos π/2। तो cos π/2 कितना होता है 0, तो 0 इज़ आवर आंसर। तो थैंक यू, यही इतना ही है, ये क्वेश्चन इसका आंसर निकल गया। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर ख़त्म करते हैं एंड वी विल गेट बैक विथ मोर क्वेश्चंस, मोर concepts in the next video. And please rewatch the video and please share comments if you have any kind of doubt. And I will share a formula identity sheet with you guys soon. It will be attached with all the videos. You just have to go through that. That will be more than enough. And thank you.